Good morning, students. This is Mr. Peter Titus from Salem classes. Some of you are pronouncing Salem classes, not Salem classes. Shalom. Shalom is a Hebrew name, and the meaning of the Shalom is peace. Okay. So, today I am here to speak you about chapter number 5.3, the yellow stars. Before entering to this class, I would like to request you, if newly you are watching this video, please subscribe it and hit the bell icon also. Okay. So, before entering to this lesson, I would like to ask you one question. Have you ever heard about Hitler, one who was the ruler of Germany, and how his cruelty was and how he was punishing to Jews? And because of his cruelty, millions of Jews have been died. Okay, millions of Jews had been died. Okay, I'm not going to tell you about the whole historical background of Adolf Hitler. But one incident I would like to tell you. There was a nice girl whose name was Anne, and perhaps she might have died, and due to having the concentration camp. Anyway, my lesson name is The Yellow Stars, chapter number 5.3, Communicative English, and for class 7th. Here in this story, we may see a grandmother and a grandson, one who is the narrator of this story, and also little bit background of Hitler. Okay? So, usually how I do, today also I would like to do the same way. First of all, I will read the paragraph and I will translate that in Hindi. Those who are understanding English, just you can hear my reading, and according to that way you can understand. And those who are understanding little bit Hindi, and those who are especially willing to have Hindi translation, they also should hear my reading, at the same time hear my translation also. The Nazi, under the leadership of Adolf Hitler, ruled Germany from 1993 to 1945. They hated the Jews and treated them very cruelly. Hitler kept millions of Jews as prisoners in death camps, where they were beaten mercilessly like animals and starved to death. This story is a tribute to one such unfortunate soul. तो यहाँ पे हम नाजी का जो मेन शासक हिटलर थे, एडल्फ हिटलर, और जिन्होंने जर्मनी में लगभग 1933 से लेकर के 1945 तक उन्होंने शासन किया, और इन शासनों के दरमियान किस तरह से ज्यूस लोगों को, यहूदी लोगों को बर्बर तरीका से, और किस तरह से उन्होंने
अपने तानाशाही शासन के द्वारा कितने सारे यहूदी लोगों को ये मौत की घाट उतारे थे, और साथ ही साथ उनके जो पार्टी है किस तरह से ज्यूस लोगों को घृणा करती थी। तो ऐसा एक स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं, और किस तरह से मतलब उनके समय पर जो ज्यूस लोगों को प्रिजन में डाले जाते थे, बंदी गृह में डाले जाते थे, जिसको कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता है, और दूसरी भाषा में उसको डेथ कैंप भी कहा जाता है। और वहाँ पे भूखे रख करके, निर्दय व्यवहार करके और खाना ना दे करके लोगों को छोड़ देते थे, और लोग छटपटाते हुए वहाँ मर जाते थे। तो इनमें से एक लड़की है जिसका नाम है एन, और ये एन भी उसी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ही गई, और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन उसके एक क्रिश्चियन दोस्त है जो कि हम इस लेसन में ग्रैंड मदर के रूप में देखते हैं, और वो किस तरह से उसको याद करती है, उसका अनफॉर्चुनेट सोल के लिए दुआ करती है, हम यहाँ पे यह देख सकते हैं। तो जब कभी वो आसमान को देखती है तब उसे कुछ याद आता है। जब उसे कुछ याद आता है और तभी नैरेटर जो एक बालक है, जो एक लड़का है, वो किस तरह से उसको सवाल पूछते हैं और पूछता है, फिर उसका जवाब के तौर पर ग्रैंड माँ क्या कहती है, इस पूरे लेसन में हम वही बात को देखेंगे। One soft summer night, Grandma and I sat on the porch swing. We were simply swing, leg hanging free, while the gentle breeze ruffled our hair. When I looked up at the sky, I saw that the first star of evening. I squeezed Grandma's arm and made a silent wish. It is a belief among most Christians that if you look at the first star of evening and make a wish, it always comes true. Grandma looked up and smiled slowly, but there was something in her eyes that wasn't smiling. Okay, Grandma and narrator, both they are swing, okay, on the porch. ग्रांडमा और ये बालक जो है ये स्विंग कर रहे थे एक पोर्च में बैठ करके। आप पेज नंबर 141 का पेज में देखोगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखेगा ये पोर्च, है ना, ये स्विंग किस तरह से वो झूल रहे थे। तो अचानक से क्या होता है कि उनके पैर भी नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, और वो झूल रहे हैं। जेंटल ब्रीज यानी अति सुंदर हवा जो है उनकी तरफ आ रही है और उनको बालों को उड़ा रही है। और ऐसे स्थिति में जो लड़का है वो किसकी ओर देखता है, आसमान की ओर देखता है और एक येलो स्टार को देखता है। यानी बिल्कुल संध्या के समय पर यदि कोई येलो स्टार को देखते हैं तो, और ख़ास करके क्रिश्चियन लोग जो है वो शुभ मानते हैं। और जैसे ये लड़का यानी नैरेटर जो है वो येलो स्टार को देखता है तभी तुरंत वो अपने जो ग्रैंड माँ का जो आर्म है उसको स्क्वीज करता है, यानी उसको कस के पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद मन में वो कुछ विश करता है, मन में कुछ इच्छा करता है। विश्वास ये है कि अगर जो इवनिंग समय का पहला तारा को अगर येलो कलर का हो उसको देखे और मन में कुछ इच्छा को रखे तो डेफिनेटली और वो इच्छा मतलब पूरा हो जाएगा। तो ऐसे समय पर ग्रैंड माँ भी उस स्टार को देख कर के थोड़ा स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों में वो स्माइलिंग झलक नहीं रही थी।
What is it? What is it, Grandma? I asked lovingly. What's the matter? Grandma gazed back at the star, drew a long breath, and sighed. I was just remembering Anne. ये दशा देख करके जब वो मायूस हो गई ग्रांडमा उस येलो स्टार को देख करके, और तभी क्या होता है कि जो नैरेटर है वो रियलिटी में उसको देख के समझ जाता है कि ग्रांडमा अभी खुश नहीं है, ग्रांडमा अभी खुश नहीं है। ग्रांडमा का जो चेहरा बता रहा है कि उसके अंदर कुछ है, और तभी वो उससे पूछता है कि ग्रांडमा ऐसा क्या बात है और जिसके चलते क्या मैटर है। तो ग्रांडमा क्या करती है, बहुत ध्यानपूर्वक उस स्टार की ओर देखती है और देख करके कहती है, मैं तो अभी एन को याद कर रही हूँ। किसको याद कर रही हूँ? मैं अभी एन को याद कर रही हूँ। एन इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स? आई आस्क्ड। ग्रांडमा looked my hand in hers. Her skin was cool and firm. Her eyes looked at me, but seemed to focus on something or someone far beyond. तो मैंने ग्रैंड मदर को पूछा, यानी यहाँ पे नैरेटर ग्रैंड मदर को पूछते हैं, और क्या पूछते हैं कि क्या ये जो एन जिसके नाम तुम ले रहे हो, क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? ना, ये कोई तुम्हारा दोस्त थी क्या? और ग्रैंडमा का जो स्किन है मतलब बिल्कुल कोल्ड हो चुका था, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, और उसकी आई जो है, ठीक है, मेरी ओर यानी नैरेटर की ओर मतलब देखती है। देखने के बाद वो कुछ चीज़ को फोकस करती है दूर तक, ऐसा नजर आता है। एंड शी सेड एंड हर वॉइस कॉट फॉर अ मोमेंट, एंड वाज माई बेस्ट फ्रेंड। इट वाज इन दैट ओल्ड कंट्री ऑफ आवर्स, वी वर very young then. I remember her thick brown hair and big brown eyes. You should have heard how we used to giggle. तो यहाँ पे ग्रैंड माँ जो है नैरेटर को कहती है, बड़े मतलब गंभीर आवाज़ निकाल करके, जैसे कि sometimes we get very sad and something is happening, just the voice is not coming out and something is hindering here, that we feel, है ना। यहाँ पे यही सेम फील उसको हो रहा था, जैसे कि मानो कोई गले से कुछ बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसे अवस्था में, ऐसे सुर में वो कहते हैं कि एन जो है मेरी बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड थी, और ये वही पुराना कंट्री है जहाँ पे हम लोग रहते थे, और हम उस समय बहुत ही यंग थे, और मैं रिमेंबर करती हूँ, मैं याद करती हूँ उसके थिक ब्राउन हेयर को और उसके बिग ब्राउन आइज को। यू शुड हैव हियर्ड हाउ वी यूज्ड टू गिगल। तुम शायद इस बात को सुने हुए होंगे कि हम किस प्रकार से मतलब सिली लाफिंग एंड करते थे, किस प्रकार से हम अम्यूज किया करते थे। देन ग्रैंडमा स्टॉप्ड ए बिग टीयर स्लाइड डाउन हर चीक, और जैसे ये कहते कहते ग्रैंडमा के आंखों से क्या बहने लगी, एक बड़ी धारा से आंसू बहने लगी। ग्रैंडमा व्हाट हैपेंड? आई सेड Where is Anne now? फिर वो कहता है ग्रैंडमा क्या हो गया, एन अब कहाँ पर है? I searched her face for an answer. I had never seen her like this. जैसे नैरेटर उसको देखते हैं तो इस तरह का मतलब दुखी अवस्था में शायद नैरेटर का भी उसको देखा हो। तभी ग्रैंडमा केम टू अमेरिका फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग World War II.
She often spoke lovingly about her mother and father, but she seldom said anything else. ग्रांडमा जो है अभी फ्रांस से अमेरिका आ चुकी है, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, और वो कई बार शी ऑफन स्पोक लविंगली अबाउट हर मदर, सो कई बार अपनी मदर से और ये कह चुकी है, एंड फादर बट सोलम सेट एनीथिंग एल्स। लेकिन कुछ इस प्रकार के जो प्रतिज्ञा हैं वो कर रखी हैं। ग्रांडमा, वेयर इज एन? एन, शी सेड, आई डोंट नो वेयर एन इज द लास्ट टाइम आई सॉ हर। ग्रांडमा कहती है, जब ग्रैंडसन पूछता है, यानी नैरेटर पूछता है कि ग्रांडमा कहाँ है एन, तभी ग्रांडमा कहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन आखिरी बार मैंने उसको देखा। ग्रांडमा स्टॉप्ड अगेन, शी लुक्ड अप अगेन एट दैट येलो स्टार इन द स्काई, शी स्क्वीज्ड माई हैंड। ग्रांडमा फिर से रुक जाती है, आसमान को देखती है, देखने के बाद अपने जो ग्रैंडसन का हाथ को जोर से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद फिर क्या करती है? Anne was wearing a yellow star on her coat. Grandma recalled Anne's parents were Jews. When the Nazi soldiers occupied France, all the Jews had to wear yellow star. तब वो पहले फ्रांस में रहते थे, लेकिन जिस समय फ्रांस को ज्यूस लोगों ने जर्मन ऑक्युपाई कर लिया, नाजी सोल्जर ऑक्युपाई कर दिया, है ना। और उसी समय क्या होता है कि वहाँ जितने भी मतलब ज्यूस लोग थे, उन सभी ज्यूस लोगों को, यहूदी लोगों को कठोर मतलब शास्ति और बहुत ही दर्दनाक मतलब अवस्था में उनको छोड़ रहे थे, और उनको येलो कलर का स्टार पहनने के लिए मजबूर करते थे, ताकि एक पहचान हो कि ये ज्यूस हैं। तो इसी प्रकार एन को भी पहनने के लिए कहा गया था। एन्स मदर हैड सीवन द स्टार टू Anne's coat. When I asked if I could have one too, she said, stars belong in the sky. When people take them down, they have trouble near them. I didn't understand then. I don't really understand even today. तो स्टार को उनको क्यों पहनाया जाता था और ये बारे में, और ग्रांडमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ग्रांडमा कभी आन की मदर को भी कह रखी थी कि मुझे भी दे दो, मैं भी पहनूं, लेकिन वो उसको पहनने के लिए नहीं देती थी। ग्रांडमा साइंड एंड स्क्वीज्ड माय हैंड, अगेन शी कंटिन्यूड। ग्रांडमा फिर से मेरे हाथ को पकड़ती है और फिर से कंटिन्यू करती है। It wasn't long after that one day the soldier started taking away everyone who wore a yellow star. They were taken to camps. We started a new life here, but the soldiers had taken Anne and her family. I never saw her again. I don't know what happened to her. तो फिर वो स्टोरी सुनाती है, कहती है कि जितने लोग जो येलो कलर के स्टार को पहन रखे थे, हैं, जो यहूदी लोग थे, एक समय ऐसा होता है कि नाजी के जो सोल्जर्स से वो आते हैं और आने के बाद उनको क्या करते हैं, उनको ले लेते हैं। कहाँ पर? वो कैंप पे ले लेते हैं, हाँ, जिसको डेथ कैंप कहा जाता है, वहाँ पे ले लेते हैं। और यहूदी लोगों को तो लिया, साथ ही साथ एन जो है वह भी वहाँ पे थी, उसको भी लेकर के चले गए। तो उसके बाद से उसके लाइफ में क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा ग्रैंड मदर कहती है। ग्रैंडमा shook her head as if to erase a bad thought. Terrible thing happened in the camps, but there were survivors. There were a few survivors.
सर्वाइवर्स। तो डेथ कैंप में बहुत ही मतलब टेरिबल थिंग होता था, वहाँ पे बड़ी दर्दनाक घटनाएं होती थी, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में से कुछ लोग बच कर के आए, और जो बच कर के आए वो उस बात को, उनके जीवन में क्या होता था वहाँ पे, इस बात को वो बताते हैं। ग्रैंडमा shook her head again. She stood up and leaned on the porch railing. It's time like this, a still silent night with a yellow star in the sky, that I remember her most. Do you suppose she survived? Do you suppose she out there somewhere? Oh, do you think? तो ऐसे समय पर नैरेटर उसको पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक जिंदा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक कहीं ना कहीं है? आप क्या सोचते हो? वो स्टार को देखते हुए ग्रैंडमा बैठी थी, वो पोर्च में, वो साइलेंट नाइट था, येलो स्टार को वो बड़ी मतलब वो लक्ष्य के साथ वो देख रही थी। तभी ये सवाल नैरेटर उनको करते हैं, और फिर उसके बाद ग्रैंडमा क्या जवाब देती है? येलो स्टार मार्था, sorry, Grandma turned and opened the door to go inside. She looked back at the darkening sky. फिर उसके बाद ग्रैंडमा दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर जाती है, और जाने के साथ साथ वो फिर से पीछे मुड़ करके उस डार्कनिंग स्काई को देखती है। येलो स्टार्स माराथा, शी सेड, दे बिलोंग टू इन द स्काई। वो कहती है, येलो स्टार माराथा कह करके वो एक ही शब्द कहती है, शायद वो सभी येलो स्टार में बदल गए, यानी एन उसका परिवार जो भी है वो सभी जो आसमान में जो येलो स्टार को देख रहे हो वो येलो स्टार में कन्वर्ट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टोरी में? पूरा स्टोरी में हम ये देखते हैं हिटलर का शासन के बारे में, हिटलर का सिपाहियों के कार्य के बारे में, फिर नाजी ग्रुप किस तरह से लोगों को मतलब यातनाएं दे रही थी उसके बारे में, और ख़ास करके ग्रैंड मदर अपने जो दोस्त एन को यहाँ पे स्मरण करती है और एक येलो स्टार के साथ उसको कंपेयर करती है। तो I hope that you have understood it very clearly. I told you about little bit of historical background. At the same time, I told you who was the grandmother and who was the narrator and who was Anne, what was the relationship between Anne and the grandmother. Everything I clarified you, and what is concentration camp, and why the Jews were punishing by the Christians, or especially by Nazi, or the main leader of Nazi, Hitler, because Hitler was too much hating to the Jews, and because of that reason he wanted to wipe out the Jews from this country, and he want to he want to keep only Christians, because he thought the Christians were only Aryans. That was his belief, and because of that reason he wanted to clean the country, and in Hindi we can say that he was a Rashtravad Vyakti. Okay, so anyway, I am not going to tell you if I teach SST for 10th class, either 9th class, so definitely I will tell you about it. Thank you. May God bless you. Have a good day. Don't forget to subscribe or share to your friends and relatives.